إلى رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبغ بعضكم على بعض وكونوا عباد الله إخوانا. حضرات گرامی، دین ہر لحاظ سے مکمل ہے. جو انسان جس قدر دین پر عمل پیرا ہوگا اتنا ہی وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوگا. جس قدر انسان دین سے دور ہوگا، جتنا زیادہ دور ہے اتنا ہی وہ خیر سے زیادہ محروم ہے. دین سراسر خیر کا سر چشمہ ہے. دین سراسر صحت و سلامتی کا نام ہے، ایمان کا نام ہے. بعض وہ معاملات جو ہماری شریعت نے کلی طور پر حرام قرار دیے ہیں اور ان میں مسلمان بڑے زیادہ ملوث ہیں، ان کا تعلق انسان کے دل اور دماغ کے ساتھ ہے، زبان کے ساتھ نہیں ہے، جسم کے ساتھ نہیں ہے. ان کاموں میں سے جو حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، مسلمان بڑے زیادہ ملوث ہیں، اس سے انسان کی صحت بھی خراب ہوتی ہے، خون بھی جلتا ہے، ملتا بھی کچھ نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے بھی دور ہوتا ہے. در در کا وہ انسان فقیر بھی ہو جاتا ہے. اللہ کے ہاں وہ بڑا برا گناہ ہے اور وہ انسان تقدیر کا بھی منکر ہوتا ہے. وہ گناہ ہے حسد. حسد کرنا، جو میں نے حدیث پڑھی، پہلا لفظ ہے لا تحاسدوا. لوگوں آپس میں ایک دوسرے پر حسد نہ کرو. حضرات گرامی، حسد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی پر، میرے کلیگ پر، ہمسائے پر کوئی نعمت کی ہے، مال کے لحاظ سے ہو سکتی ہے، اولاد کے لحاظ سے، یا کسی بھی نوعیت کی نعمت اللہ نے کی ہے. میں دل میں یہ بات رکھوں، 24 گھنٹے یہی سوچتا پھروں، کاش یہ نعمت اس سے ختم ہو جائے، مجھے مل جائے. اس نے پراٹو لے لیا، اللہ کرے یہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے. یعنی کسی پر جو اللہ تعالیٰ نے نعمت کی ہے اس کو ختم کرنے کا ارادہ سوچ لینا، منصوبہ بنا لینا، اس سے زائل ہو جائے، بس مجھے مل جائے. یہ ہے حسد. حضرات گرامی، یہ کبیرہ گناہ ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا. لوگوں آپس میں ایک دوسرے پر حسد نہ کیا کرو. میرے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے کوٹھی بنگلہ دے دیا ہے، تو بھائی اللہ نے دیا ہے. اب میرا غلط نظریہ رکھنے سے وہ چھنے گا نہیں. کیا فائدہ مجھے؟ بس کیونکہ میرے پاس نالج تھوڑا ہے، میرے پاس قرآن و حدیث کا علم کم ہے، اس لیے میں اپنے اتنے پیارے جسم کے اندر آگ لگاتا ہوں. یاد رکھے، جو انسان حسد کرتا ہے 24 گھنٹے وہ جلتا رہتا ہے، اس کے اندر آگ لگی رہتی ہے. بظاہر وہ اے سی میں بیٹھا ہوا ہے لیکن حقیقت میں وہ جہنم کی آگ ہے جس میں وہ جل رہا ہے، بن رہا ہے.
कोई प्रोपिगंडा कर रहा है, किसी को गुस्सा रहा होगा। अच्छा हाँ जी मैंने पता है यार सारिया गल्लां दा, इसने कोठी कहाँ से ली, इसने बाजारों कहाँ से ली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रात गिरामी, मुझसे आप ज्यादा लोगों को जानते हैं, हमारा ज्यादा रास्ता नहीं लोगों से, आप ज्यादा जानते हैं। वल्लाह अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, ये बीमारी लोगों में आम है। दो कुलीक हैं तो एक दूसरे से हसद कर रहे हैं। बड़ी ज्यादा बातें हैं, मैं खुलासा बयान करना चाहता हूं। जो शख्स अपने जिस्म को सेहतमंद रखना चाहता है, तवाना रखना चाहता है, वो हसद करना छोड़ दे, हसद करना छोड़ दे। जो हसद करना छोड़ देगा उसका दिलो दिमाग 100% जिस्म को सही पंप करेगा, सही चीजें मुहैया करेगा। इमाम अस्माई राहिमहुल्लाह एक बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, वो कहते हैं मैं एक देहात में गया, किसी जंगली इलाके में गया, वहां मैंने 120 साला बुजुर्ग पाया। उम्र कितनी है? 120 साल, और चुस्त चला, बिल्कुल जवानों की तरह हट्टा कट्टा है। तो मैंने कहा बुजुर्गों कितनी उम्र? जी मेरी 120 साल उम्र है। तो बुजुर्गों जिस्म आपका माशाअल्लाह लगता है 120 साल का, क्या खाते क्या पीते हैं? उन्होंने कहा अल्लाह के बंदे खाना पीना क्या है? मैंने हसद छोड़ दिया था। अल्लाह अकबर, मैंने हसद करना शुरू में ही छोड़ दिया, तभी मैंने हसद नहीं किया। शायद उसकी बरकत है कि मेरा जिस्म अभी सही सलामत है। हज़रात गिरामी, ये बातें मशहूर है, गम इंसान को बूढ़ा कर देता है। सही अहादीस में भी है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया शय्यबतनी हूद व अखवातुहा, ऐ मेरे सहाबा, सूरत हूद और हूद जैसी दीगर सूरतों में क़यामत के मनाज़िर हैं, आखिरत की हौलनाकियों का बयान है। जब मैं उन सूरतों को पढ़ता हूँ मुझे गम पहुंचता है, मैं निडाल हो जाता हूँ। अल्लाह ये कितना मुश्किल मामला है वाला। तो इन सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। ये बातें मशहूर है, गम इंसान को बूढ़ा कर देता है। इंसान बूढ़ा नहीं होता, औलाद की मसाइल, परेशानियां, गम ये इंसान को निडाल कर देते हैं। हज़रात गिरामी, वो कितना बेचारा कमजोर इंसान है, कितनी बड़ी गलतफहमी में है। इत्तेफाक अस्पताल से लाभ इलाज नहीं कराता, अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को हायर करता है, बड़ी ज्यादा अपने जिस्म की हिफाजत के लिए चीजों का इस्तेमाल करता है। याद रखें ये चीजें उसको जरा फायदा नहीं देंगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दुश्मन दाखिल है, वो हसद है। आए हसद को दफा कर दें, हसद को निकाल दें। याद रखें हसद की तारीख बड़ी पुरानी है, जिसने भी हसद किया वो नाकाम हुआ है। एक भी हसद करने वाला कामयाब नहीं हुआ। चांद की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा हासिद, सबसे बड़ा दुश्मन, उसका नाम था अबू जहल। अबू जहल से बड़ा दुश्मन इस्लाम की हिस्ट्री में नहीं आया। इसकी बकायदा एक तारीख है, बहुत कुछ लिखा है अबू जहल पर, ये कितना गंदा इंसान था। अल्लाह अकबर, क्या ये कामयाब हुआ? इसको कामयाब होना चाहिए था। ये सरदार था, अरब का सेठ था, नहीं कामयाब हुआ। रब ने दुनिया में भी इसको जलील कर दिया। ओहद का मुकाम था, ये मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सफा हस्ती से खत्म करने के लिए आया था। अल्लाह ताला ने छोटे छोटे बच्चे मुअव्वज़ और मुआद से इसकी गर्दन को तन से जुदा करवा दिया, जलीलो खार कर दिया। हसद करने वाले, तुझे क्या पता ये छोटे छोटे बच्चे तुझे तहस नहस करके रख देंगे। हज़रात गिरामी, सूरत यूसुफ
अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम सब के लिए बहुत बड़ा नमूना है। बज़ाहिर अकेला यूसुफ एक तरफ है, कड़ियल जवानों की जमात एक तरफ है। आपका क्या ख्याल है? जिधर जमात हो उनको कामयाब होना चाहिए। फर्द बहद को तो वो मूली की तरह काट देंगे, कच्चे को खा जाएंगे। लेकिन एक तरफ हासिदीन का कड़ियल जवानों का जुमरा है, जमात है, दूसरी तरफ फकीर मिस्कीन छोटे से यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जिनके पास भी ताकत भी नहीं है, अभी लड़के हैं, जवान भी नहीं है, बचपन से गुजरे लड़कपन है। भाइयों ने हसद करना शुरू कर दिया। हजरात गिरामी, मेरे और आपके लिए सबक है। यूसुफ के भाइयों ने हसद किया, रब ने फकीर बना दिया था। जालिमों, तुम हसद करते हो, तुम्हें क्या पता यूसुफ रब के कितना करीब है। चलो, मैं हसद का नतीजा साबित करना चाहता हूं। जाओ जाके यूसुफ के दर के फकीर बन जाओ। यहां से ये नतीजा हमारे उलमा ने निकाला, लिखा है कि जो हसद करने वाला है वो दर दर का फकीर होगा। एक दिन आएगा वही हसद करने वाला जिस पर हसद करता था उसके दर का मंगता बन जाएगा। हजरात गिरामी, आए, ये हसद पर लानत हम बेचते हैं, जूते की नोक पर हसद को रखते हैं। मेरे भाई को अल्लाह अरबों खरबों डॉलर मिलियन का मालिक बना दे, अल्लाह की कसम मैं और दुआएं करूं, अल्लाह ये मेरा भाई है, इसको और ज्यादा अता फरमा, अल्लाह इसे भी दे, अल्लाह मुझे भी दे दे। ये तो दुआ होगी ना। यानी हम किसी की नेमत देखी माशाअल्लाह पढ़े, उसको मुबारक दें। कोई साथी है, कुलीग है, ओहदा मिल जाए, ओहदा मिल जाए तो हम हसद नहीं करेंगे, उसके खिलाफ साजिश नहीं करेंगे, उसको मुबारक देंगे, भाईजान मुबारक हो, उसको मिठाई खिलाएंगे, दिल से दुआ देंगे, भाई अल्लाह आपको और इज्जत अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान अपने भाई के लिए दुआ करता है, फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। मतलब मैं कहूँ अल्लाह मेरे भाई को इज्जत अता फरमा, उसका अच्छा ग्रेड मिल जाए, तो फरिश्ते मेरे लिए दुआ करते हैं, अल्लाह को इब्ने बशीर को अच्छा ग्रेड अता फरमा। तो हमें अपने दिल को पाक साफ रखना चाहिए, और ये फर्ज है। चंद खुतबे मैं वो बयान करना चाहता हूँ जिनमें बज़ाहिर हर किसी गुनाह लेकिन है बड़े कबीरा गुनाह, उस खुतबे में उन पर बयान करना चाहता हूँ। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हमारी शरीयत ने दो जगह हसद को जायज करार दिया है, दो जगहों पर हसद करना जायज है। पहली जगह, किसी मेरे भाई ने इल्म में बहुत ऊंचा मलका, ऊंचा दर्जा था कर लिया है, अल्लाह ने दे दिया है इल्म, तो इंसान उस पर रशे करे, अल्लाह ये दर्जा मुझे भी अता फरमा, उसको दिया है ना तो मुझे भी अता फरमा। इस हदीस में भी ला हसदा के लफ्ज हैं, इल्ला फिस्नतैन, कि हसद जायज नहीं है मगर दो सूरतों में। लेकिन यहाँ हसद का माना रशक करना, रशक। तो भाई जी देखो, मेरे चाचू को बेटे को अल्लाह ताला ने 25वें ग्रेड का प्रोफेसर बना दिया है, ये रशक है, ये हसद नहीं है। हाँ, हदीस में चूंकि लफ्ज हसद है, इसलिए इन दो चीजों में हसद करना जायज है। पहली चीज, इल्म के अंदर किसी को अल्लाह ने ऊपर वाला दर्जा दिया है, वैसे हदीस में लफ्ज है कुरान और हदीस के इल्म है, कुरान और हदीस का। अल्लाह ने किसी को बड़ा मुहद्दिस बना दिया है, अल्लाह मेरे बेटे को भी बना दे, तो ये जायज है। दूसरा, हसद की सूरत, रशक की सूरत, कोई शख्स
غریبوں پر، مسکینوں پر، مسجدوں مدرسوں پر پیسہ خرچ کرتا ہے، پتہ چل جائے مجھے، رشک کروں کہ اللہ میں اسے زیادہ کروں گا مقابلہ، تو نیکی کے کاموں میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، فضول چھوٹے چھوٹے لیول کے ذہنوں میں ہمیں حسد کو ختم کرنا چاہیے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔